Okay, good morning to all of you. Hope you all are fine. Yes or no? You all Yes. are fine or not? Yes, sir. Okay. Why some people are coming very late? Okay, good morning. Myself, Manish Thakur. I am the assistant professor in mechanical engineering department at Tumka Engineering College, right? And today I am going to discuss about some numerical problem related to the rolling process, right? Already I have covered a different type of operations regarding the rolling processes, right? And we will uh, we will revise some formula here. Please look, and after that we will discuss some numerical problem, right? First of all, please tell me what is draft? What is draft? Anyone? What is draft? Anyone want to say something about the draft? Anyone want to say the definitions of draft? How you will find the value of draft, right? Already I have discussed. Yes, Ravi, please tell me. T initial minus T final thickness. Very good, very good. And what's about other? तुम लोग और क्या कर रहे हो जी? कुछ नहीं पढ़ रहे हो तुम लोग घर में क्या? This is the formula, right? Draft is what? Draft is equal to T initial minus T final. That the initial thickness minus final thickness, that will be the draft, right? How much the reductions in the thickness that will be achieved here, right? Next, how you will find the value of what is the what is the condition already discussed for the rolling operations is to happen? What will be the conditions? The mu should be greater than 10 alpha, right? Where alpha is what? Alpha is the bite angle, right? Alpha is the bite angle. And how the alpha can be calculated? Alpha will be, alpha is equal to 10 inverse mu. 10 inverse mu. Is it okay or not? Is it okay or not? Can we write here or not? Yes. Okay, very good. Okay, look at this here. 1 minute. आप लोग के पास है ना कैलकुलेटर है? Do you have the calculator or not? Yes, sir. Yes. Okay. Next was what? How the projected length, that is LP, right? LP is what? LP is nothing. It is the projected length of this arc, right? The arc that is known as our contact length. ठीक है, इसका projections that will be equal to LP, right? And LP और जो ये LP और ये जो arc है, that will be nearly equals in length, right? ठीक है, and that can be found root under capital R into delta H, where delta H is what? Delta H is the draft. ठीक है, delta H is D naught minus DF, that is the draft here, and capital R is the radius of the roller, right? Radius of the roller, right? ठीक है. Next, how the maximum draft can be calculated? Already I have discussed D maximum, that is the maximum draft, or delta H maximum, that can be calculated by using this formula, that is mu square into R, right? You should remember this formula always, because it can be asked in the GATE examinations, right? Many times it has been asked in the GATE examinations, right? Okay, so this is the maximum draft mu square into R, right? Already I have discussed draft, how the draft can be calculated, number of pass can be calculated, right? So first questions is already I have discussed in the last class now, how the number of passes is to be calculated, right? But look at this slide.
right? Again we are going to repeat this, right? Okay. So look at the questions. In the questions, it is given that a series of cold rolling operations, there may be a lots of rolling operations, right? Okay, that is the number of passes will be there, right? You have to make the plate thinner, right? Okay, in number of passes, right? There may be a TF and this will be the T naught, right? Okay, so we have to calculate the value of number of passes and draft per passes. Okay, each and every passes, what will be the draft for that passes, right? Okay, so suppose this is for pass 1, this is pass 2, and this is for pass 3, right? Okay, so we have to find what? We have to find the number of passes, how much the passes will be there to form. Initial thickness is here given 25 mm, 50 mm to achieve the final thickness of 25 mm, right? Clear to everyone? So we know that the maximum draft can be achieved by maximum draft. How much the maximum draft can be achieved? Maximum draft is equal to mu square into r. ठीक है, तो एक ड्राफ्ट में कितना मैक्सिमम अचीवमेंट कर सकते हैं, मैक्सिमम ड्राफ्ट या रिडक्शंस कितना अचीव कर सकते हैं एक ड्राफ्ट में? दैट इज द म्यू स्क्वायर इनटू आर. इज इट ओके और नॉट? इज इट ओके और नॉट? Yes, sir. इज इट ओके? यस, वेरी गुड. ठीक है, तो मेरे पास देखो कितना रिडक्शंस चाहिए. हम फाइनल इनिशियल रिडक्शंस माइनस फाइनल रिडक्शंस, राइट? Total reductions is how much here? This is 50 minus 25, that is 25 mm will be the total reductions, right? But in each reductions, how much the maximum reductions is possible? एक reductions में कितना reduction possible है? एक पास में कितना reductions maximum possible? That is mu square into r. ठीक है, the total reductions dividing by the reductions in each pass, that उसको डिवाइड कर देंगे तो दैट विल गिव्स यू द नंबर ऑफ पासेस रिक्वायर्ड, राइट? क्लियर? ठीक है, तो म्यू स्क्वायर आर इज द मैक्सिमम पास. ठीक है, सॉरी, दिस इज द मैक्सिमम रिडक्शंस इन ईच पास. एक पास में मैक्सिमम रिडक्शंस कितना होगा? म्यू स्क्वायर इनटू आर, राइट? ओके, प्लीज टेल मी. ये सिर्फ मैक्सिमम के लिए ही है, अगर उससे कम रहेगा तो ये कंडीशन भी तो नहीं होगा ना. अरे मैक्सिमम रिडक्शंस तो यही हो सकता है ना, म्यू स्क्वायर इनटू आर विल बी द मैक्सिमम रिडक्शंस. इससे तो थोड़ा सा कम भी हो सकता है वैल्यू ना. बात समझ में आई? इससे थोड़ा कम वैल्यू हो सकता है कि नहीं हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम इससे ज्यादा नहीं हो सकता है वैल्यू. ठीक है, मैक्सिमम रिडक्शंस इन ईच पास विल बी म्यू स्क्वायर इनटू आर. क्लियर? क्लियर कुणाल? इज इट क्लियर और नॉट? ओके, ठीक है. यहाँ पे देखो टोटल रिडक्शन हमें कितना चाहिए? टोटल रिडक्शन टी नॉट माइनस टी एफ चाहिए. टी नॉट माइनस टी एफ चाहिए डिवाइडिंग बाय मैक्सिमम रिडक्शन इन ईच पास को डिवाइड कर देंगे तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ पासेस. ठीक है, तो वी विल पुट द नोन वैल्यूज हियर. वी विल गेट द वैल्यू ऑफ 3.17. दैट इज द नंबर ऑफ पासेस. द नंबर ऑफ पासेस जो होता है वो एग्जैक्ट क्वांटिटी में होना चाहिए, इंटीजर क्वांटिटी में होना चाहिए. ठीक है, 3.17 पास नहीं होता है. ठीक है, तो करीब करीब 4 पास में हमको मेटल को रिडक्शन कराना पड़ेगा सो दैट वी कैन अचीव द फाइनल थिकनेस ऑफ 25 mm. क्लियर? ठीक है, तो 4 पास हमें चाहिए टू अचीव द 25 mm थिकनेस मटेरियल और ऑब्जेक्ट और प्रोडक्ट है, राइट? ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ पासेस कितना हो गया? दिस इज द नंबर ऑफ पासेस, दैट इज 4. अब हमें क्या करना है कि अब तो क्या बोला है? मिनिमम ड्राफ्ट फॉर ईच पासेस. तो हर एक पासेस में क्या होगा? बराबर ड्राफ्ट होता है. ठीक है, तो बराबर ड्राफ्ट होता है तो हमने क्या कहा? मैक्सिमम ड्राफ्ट से कम हो सकता है ना, मैक्सिमम ड्राफ्ट से कम हो सकता है. ठीक है, तो ये जो वैल्यू आया आपका मैक्सिमम ड्राफ्ट से कम होगा. ठीक है, तो ये जो मैक्सिमम ड्राफ्ट पर पासेस कैसे निकालेंगे? तो हमें पता है कि एक पास में कितना रिडक्शंस होता है, एक पास में हमें कितना रिडक्शंस होता है, दैट इज टू बी कैलकुलेटेड है, राइट? ठीक है, तो नंबर ऑफ पासेस मेरे पास निकल गया 4 एंड टोटल थिकनेस कितना रिडक्शंस करना है हमें? टी नॉट माइनस टी एफ, दैट इज 50 माइनस 25 mm, दैट इज इक्वल टू 25 mm, राइट? डिवाइडिंग बाय टोटल नंबर ऑफ पासेस दैट इज 4. ठीक है, इसको डिवाइड कर देंगे तो ईच पास में पास 1 में कितना रिडक्शन हुआ? 6.25. फिर से पास 2 में कितना परसेंट रिडक्शन हुआ? 6.25. फिर से 6.25, फिर से 6.25. ठीक है, तो 6.25 को 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा?
6 चौक 24 है 25, 25 mm रिडक्शन हुआ या नहीं, into 4 that is equal to total reductions 25 mm. Is it okay or not? Is it okay or not? Yes, sir. Yes, sir. ओके वेरी गुड। ठीक है, अब आप लोग पेन निकालिए, कैलकुलेटर निकालिए आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ओके, लुक एट दिस here. The questions is given here. The thickness of a plate is to be reduced from 60 mm to 40 mm by multiple rolling operations. ठीक है, यहाँ पे number of passes दिया हुआ है, ठीक है, more than 1. Clear? ठीक है, roll radius is 350 mm and mu is equal to 0.15. Assuming equal draft in each pass, then the minimum number of passes required would be. The minimum number of passes required would be what? Please tell me. कौन पहले बनाता है, दिखाओ जल्दी से। आप लोग बना रहे हो, कौन कौन कैलकुलेटर रखे हो, बना रहे हो अभी, एक बार बोल दो। हेलो, यस सर। सर क्वेश्चन को नीचे कीजिए। क्वेश्चंस को नीचे, तो दिख नहीं रहा। ठीक है सर, अब ठीक है, यस। ओके, ठीक है, प्लीज डोंट राइट द क्वेश्चंस, प्लीज सॉल्व ओनली द क्वेश्चंस है, ठीक है। गिवन डाटा, प्लीज राइट डाउन द गिवन डाटा एंड वर्किंग फार्मूला ओनली एंड टेल मी द वैल्यू ऑफ आंसर। गिवन डाटा क्या है जी आपका, टी एफ इज गिवन, सॉरी टी नॉट इज गिवन इज इक्वल टू 60 mm, टी एफ इज इक्वल टू 40 mm। आप लोग का एग्जाम होने वाला है लास्ट जून या फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में। ओके, रेडियस कैपिटल आर इज गिवन इंटरनल एग्जाम ना, नहीं फाइनल एग्जाम, सेमेस्टर एग्जाम, इसीलिए आप लोग बोल रहे हैं आप लोग को प्रैक्टिस करो। सेकेंड इंटरनल होगा हम लोग का तब ना सर। सेकेंड इंटरनल तो हो ही जाएगा उससे पहले, सेकेंड इंटरनल तो कॉलेज का हाथ में है ना जी। ड्राफ्ट ठीक पर है, पास निकालना है क्या? क्या बोले, नंबर ऑफ पासेस निकालना है ड्राफ्ट पर पास पर। ड्राफ्ट पर पास कितना आया, ड्राफ्ट पर पास नहीं नंबर ऑफ निकालना, पासेस, अभी कितना आया, नंबर ऑफ पासेस 3 आया, अब उसको डिवाइड करना होगा। हाँ वो निकालिए, 20 ठीक है। by 3, 20 by 3। नंबर ऑफ पासेस कितना आया लक्ष्मण, वीरेंद्र हांसदा, वीरेंद्र सोरेन 6.666 आ रहा है। 6.6, वेरी गुड। तपन, सोमोजीत, सोमोजीत दास, हाँ सर कितना है तुम्हारा, जी, मतलब फॉर्मूला याद नहीं है। अभी जस्ट बताया ना मैंने क्वेश्चन। नफीजा, कितना है जी, सर नंबर ऑफ पासेस 3 है। वेरी गुड, ओके ओके, ठीक है। उसके बाद रघुवंश, रघुवंश आर यू देयर और नॉट, है ही नहीं, क्लास अटेंड करता है, कहाँ चला जाता है। ओके ठीक है, कुछ लेट से आ रहे बंदे, उनको बोलिए टाइम से आएंगे, ठीक है, अभी एंट्री नहीं दे रहे। The number of passes, right? You have to find the number of passes. So already I have told this is the formula here. TF, sorry, T naught minus TF dividing by what? Mu square into R. That is the maximum draft, right? Maximum draft per pass. So T naught कितना है जी? 60 minus 40 dividing by mu square is how much? 0.15 whole square into 350। कितना आया था रब्बी बताओ, 3.3 आया था एग्जैक्ट ना,
2.53 था तो 3 मान लिए। 2.53 राइट, 2.53 राइट। तो ये कितना हो जाएगा, 3 पास हो जाएगा राइट, 3 पास हो जाएगा। यदि आपको ड्राफ्ट पर पास पूछा जाएगा, 3 पास कैसे ड्राफ्ट होगा सर, मतलब 2.53 हुआ, कौन ये नहीं पूछा जी, जान। कौन पूछा, विकेश, कुणाल? यस सर। विकेश पूछा सर। विकेश, तो विकेश तुमको अभी ना बताया था कि पास जो होता है इंटीजर क्वांटिटी में होता है, ठीक है, पास समझ रहे हो, Yes. सेट ऑफ रोलर, ठीक है, तो इंटीजर क्वांटिटी में होता है, ठीक है। तो हमको आपका रिडक्शंस कराने के लिए कितना चाहिए, 2.53, ठीक है, तभी हमको अचीवमेंट मिलेगा। प्रोडक्ट का जो आपका डायमीटर फाइनल डायमेंशन से 40 mm मिलेगा, ठीक है। यदि 2 कराओगे तो उतना नहीं जाएगा, 40 mm नहीं रिडक्शंस मिलेगा हमें, ठीक है। तो हमको तीसरा पास में भी जाना पड़ेगा टू अचीव द 40 mm टाइम, ठीक है। तो ड्राफ्ट पर पास कैसे निकालेंगे, ऑलरेडी आई हैव डिस्कस ना, तो टी नॉट माइनस टी एफ डिवाइडिंग बाय नंबर ऑफ पास। कितना पास हमने लिया था, 3 पास लिया था, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे टी एफ कितना हो जाएगा जी, 20 हो जाएगा ना, 6.66 हाँ 20/3 6.66 6 mm, mm आया। हाँ जो भी है 36 आया जो, ठीक है। कैलकुलेशंस आप देख लो, ठीक है। 3 6 नहीं सर, 6 आते रहेंगे। ओके 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 रेफरिंग कर रहा था। ओके 6 6.6, 7 कर ठीक है, दीजिए। ठीक है, ठीक है, रहने दो उतना तुम लोग करो, ठीक है। ओके, वी आर लुकिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चंस। Please look at the questions here, right? A strip with cross sections, CS4 cross sections, right, of 150 mm into 4.5 mm is being rolled with 20% reductions in a sort of area using 450 mm diameter rolls, right? The angle subtended by the deformation zone at the roll center each रेडियन में निकालना है आपको। एंगल समझ में आ रहा है, दिस इज द वर्क पीस हियर, राइट, एंड दिस इज द थिकनेस दैट इज टू बी रिड्यूस हियर, ठीक है। तो ये रोलर जो है इसका सेंटर हमने लिखा था ना, याद है ना, दिस इज द सेंटर हियर, वी हैव टू फाइंड द एंगल, व्हिच टाइप ऑफ एंगल, दैट इज द एंगल अल्फा, राइट। हाउ विल फाइंड द एंगल अल्फा, ऑलरेडी वी नो दैट द अल्फा tan alpha is equal to how much, root under delta h dividing by r, यही होता था, याद है, yes or no? tan alpha is equal to root under mu square, root under delta h into r, याद आया, याद आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर। ओके, ठीक है। यदि आपको याद नहीं आया तो हम क्या करेंगे कि हमें एक वैल्यू पता है, यहाँ पे क्या है, म्यू स्क्वायर इंटू आर दैट इज इक्वल टू डेल्टा एच, याद आया ना, डेल्टा एच, ठीक है। तो हम म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा एच लिख सकते हैं, डिवाइडिंग बाई आर लिख सकते हैं, और म्यू स्क्वायर को म्यू कर देंगे तो रूट अंडर डेल्टा एच बाई आर आ जाएगा। और म्यू क्या होता है, याद आया, म्यू इज इक्वल टू टेन अल्फा, ठीक है। तो टेन अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एच बाई आर, राइट, ठीक है। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट व्हाट, यू हैव टू कैलकुलेट द एंगल अल्फा। इजी है, इजी है या नहीं है, इजी है कि नहीं है, बताओ जी जल्दी से। यस सर। सर वहाँ ग्रेटर देन होगा, नहीं वो ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू लिमिटिंग कंडीशंस में ले रहे हैं, इक्वल टू कर दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब बताओ, यहाँ पे अब तुम बताओ कि हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड आर का वैल्यू पता है हमें 450 mm, राइट। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द डेल्टा एच, डेल्टा एच विल बी गिवन बाय, डेल्टा एच विल बी गिवन बाय टी नॉट माइनस टी एफ, राइट, टी नॉट माइनस टी एफ, राइट, ठीक है। तो यदि हम क्रॉस सेक्शन एरिया की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका मान लो कि दिया हो 150 mm into 4.5 mm, दिस इज द टी T naught. Suppose this is a T naught here. You have to find the value of TF. TF का वैल्यू आपको निकालना है, राइट। तो कितना दिया हुआ, रिडक्शन इन एरिया,
राइट। एरिया का रिडक्शन मेरे पास कितना दिया हुआ बताओ जल्दी से, 20%। तो 0.2 20% मतलब 0.2, that will be equal to reductions in area, that is A naught minus AF dividing by A naught. Can we write or not? Can we write or not? Please tell me. Please tell me. सर समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा, कुछ तो बताओ जी। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या किया कि A naught minus AF is equal to dividing by A naught, that will gives you the percentage reductions, right? ठीक है, तो यहाँ पे एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चौड़ाई इंटू थिकनेस, क्रॉस सेक्शन एरिया की बात कर रहा ना, तो चौड़ाई दैट इज द विड्थ इंटू इनिशियल विड्थ इंटू इनिशियल थिकनेस माइनस फाइनल विड्थ माइनस फाइनल क्या हो जाएगा थिकनेस डिवाइडिंग बाय एरिया ए नॉट डब्ल्यू नॉट इंटू ई नॉट। कैन वी राइट? ठीक है, एजम्पशंस ले लेते हैं। एजम्पशंस है जो विड्थ है, विड्थ इनिशियल विड्थ विल बी इक्वल टू फाइनल विड्थ। ठीक है, एजम्पशंस लेना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये भी एक अननोन हो जाएगा, राइट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनिशियल विड्थ एंड फाइनल विड्थ वुड बी सेम। कैन वी राइट यस और नो? यस और नो, प्लीज टेल मी। Yes, sir. यस और नो? Yes, sir. ओके, ठीक है, तो कैन बी राइट हियर ओमेगा नॉट टी नॉट माइनस ओमेगा नॉट इंटू टी एफ डिवाइडिंग बाय टी नॉट। ठीक है, तो यहाँ से ओमेगा नॉट कॉमन आ गया और ओमेगा नॉट यहाँ से कॉमन आ गया, तो अब क्या बचता है बताओ दोस्त, टी नॉट माइनस टी एफ डिवाइडिंग बाय टी नॉट, दैट इज इक्वल टू 0.2 नॉट। ठीक है, तो टी नॉट माइनस टी एफ दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच, 0.2 इंटू Two. टी नॉट, Not. टी नॉट 4.5 आ गया। प्लीज टेल मी 45 गुना 90, ठीक है, कितना हो जाएगा? 9.0 9.0 हो जाएगा, राइट। 0.9 होगा ना, चेक करो। 9 होगा, सर जाएगा। 0.9 सर। 0.9 होगा, ठीक है, तो 0.9 हो जाएगा, 9 राइट। ठीक है, नाउ पुट द वैल्यू हियर, पुट द वैल्यू 10 अल्फा इज इक्वल टू 10, यहाँ पे पुट 10 अल्फा या अल्फा निकाल दो, अल्फा इज इक्वल टू 10 इनवर्स रूट अंडर डेल्टा एच है 0.9 डिवाइडिंग बाय आर, कैपिटल आर। तो यूजिंग द डायमीटर दिया हुआ 450, तो 450 का आधा कितना हो जाएगा, 225। ठीक है, प्लीज टेल मी द वैल्यू ऑफ थीटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा यार, सॉरी अल्फा। Three 0.618. किसका आया रवि, किसका आया लक्ष्मण? सर 3.61 जैसा आ रहा था। Mandeep का sir. मनदीप का, ओके मनदीप, वेरी गुड। 3.6, 6 चलो 3.6 डिग्री, राइट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है बताओ, रेडियन में पूछा है, यहाँ पे डिग्री में नहीं पूछा है, तो कैसे करोगे रेडियन में कन्वर्ट, कैसे रेडियन में कन्वर्ट किया जाता है बताओ जल्दी से। क्या करना है आपको, इसको रेडियन में लाना है, राइट। तो हाउ यू विल कैलकुलेट इन रेडियन। ठीक है, तो याद करो एक फॉर्मूला आता था, यदि हम बात करते हैं 180 डिग्री की, तो 180 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है, पाई रेडियन, याद आया। 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 डिग्री में कितना रेडियन हो जाएगा, पाई बटा 180 हो जाएगा। तो कितना डिग्री हमारे पास 3.6 डिग्री है, कितना रेडियन हो जाएगा, पाई बाई 180 इंटू 3.6। प्लीज टेल मी द वैल्यू।
कितना रेडियन आ गया? सर 0.06 0.06 2 वेरी गुड, वेरी गुड लक्ष्मण। 0.06 will be the correct answer। ठीक है, इस तरीके से आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। आपको ध्यान देना है कि जो एंगल पूछा जा रहा है, कौन सा एंगल? वाइट एंगल इसको बोलते हैं। ठीक है, या डिफॉर्मेशन जोन का जो सबटेंडेड एंगल है उसका और बहुत सारा नाम होता है, राइट। ठीक है, तो वाइट एंगल जो होता है वो कैसे कैलकुलेट करता है? फॉर्मूला में याद है, फॉर्मूला हमने बताया। ठीक है, दिस विल बी द फॉर्मूला है, राइट। हाउ विल यू कैलकुलेट? बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। ओके, एंड आपको ध्यान देना है कि वो एंगल में पूछ रहा है कि रेडियन में पूछ रहा है। ठीक है, तो यदि आप डायरेक्ट इस फॉर्मूला का यूज करोगे the answer will be in degree, right? Okay, then you have to calculate the value in radian। ठीक है, यदि रेडियन में पूछा जाएगा तो आपको रेडियन में कैलकुलेट करना है by using this relations। Clear? Hope it is clear to all of you। Yes, sir. Okay, okay, please write these questions, solve these questions। This is very simple। आप लोग सब बना रहे हो या नहीं? देखो, जो बना रहे हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं बना रहे हो तो आप लोग अपने आप को धोखा दे रहे हो। ठीक है, इसीलिए हम पहले से बोल के रखे हैं कि आप लोग कॉपी पेन और हमेशा कैलकुलेटर यूज कीजिए, कैलकुलेटर रखिए अपने पास। हम क्लियर बता रहे हैं, जो भी पढ़ा रहे हैं आपको इसका फायदा फ्यूचर में मिलने वाला है। ठीक है, यदि अभी आप नहीं पढ़ोगे बाद में पछताना पड़ेगा। इसीलिए हम बोल रहे हैं जो पढ़ा रहे पढ़ो। ये सब क्वेश्चंस आया हुआ गेट में या इंजीनियरिंग सर्विस में कहीं ना कहीं आया हुआ है। ठीक है, तो सेमेस्टर एग्जाम में तो इसी टाइप का आता है, ऐसा नहीं कि बाहर से आता है। इसी कॉन्सेप्ट पे आपका क्वेश्चन आएगा। ठीक है, उसमें थ्योरी भी आता है, लेकिन आपका कंपटीशन एग्जामिनेशन में जनरली इंजीनियरिंग सर्विस की बात करते तो वहां भी थ्योरी आपको मिल जाएगा, लेकिन आप जब गेट में जाओगे तो वहां थ्योरी शायद ही मिलेगा आपको। ठीक है, इसी टाइप का न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो आप लोग कोशिश करना चाहिए कि जो सर बोलते हैं, कोई भी सर, हम हो या कोई भी सर हो, उनका बात सुने, उसके अकॉर्डिंग आप एक्ट करो, राइट। ओके, प्लीज टेल मी द वैल्यू। व्हाट इज द आंसर? सबसे पहले गिवन डाटा कितना दिया हुआ है जी? इन सिंगल पास। ठीक है, यहाँ पे पास कितना है? 1 है। रोलिंग प्रोसेस यूजिंग 410 mm डायमीटर स्टील रोलर, a strip of width 140 mm and thickness 8 mm undergoes 10% reduction of the thickness, right? ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं डायमीटर की। ठीक है, तो डायमीटर कितना दिया हुआ है जी? डायमीटर, राइट, इक्वल टू 410 mm। ठीक है, तो रेडियस कितना हो जाएगा? 410 बटा 2 कितना हो जाएगा? 200। 0.06 दोबारा रेडियन। 0.06 रेडियन Yes, रबी का। ठीक है, और किसी का कुछ? और किसी का कुछ आया? कोई बोलोगे या ना? सर 0.06। ओके मनदीप, मैच कर रहा है, इसका मतलब आंसर तुम लोग करेक्ट है। और कोई? कुणाल, विकेश, रघुवंश, सोमोजीत, वीरेंद्र, बसंत, अंकित कुमार। सर एज वाला फॉर्मूला तो क्या बोले थे? एज फार्मूला कहाँ से? एज फार्मूला मतलब क्यों लगाओगे यहाँ पे? एंगल टी निकालना, नॉट वाइट माइनस एंगल टी ना? एफ नहीं निकालेंगे? हाँ 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 हाँ, ठीक है, तो वहां पे टीएफ माइनस टीएफ निकालो, तो टीएफ कितना निकला तुम्हारा, बताओ। नहीं सर, मतलब वो जो 0.1 मतलब जिसका पिछला वाला में निकलता ना 0.2 इक्वल टू A0 माइनस AF। माइनस टीएफ,
अरे तुम वहां कहाँ जा रहे हो? तुमको क्या निकालना है? सबसे पहले वर्किंग फॉर्मूला क्या है? टेन अल्फा इज इक्वल टू व्हाट? टेन अल्फा इज इक्वल टू रूट अंडर डेल्टा डेल्टा एच एच बाई आर। बाई आर, राइट? यू हैव टू हाँ। फाइंड वैल्यू, आर का वैल्यू दिया हुआ मेरे पास, आर का वैल्यू 205 एच mm है निकालना। ना? ये डेल्टा हाँ। एच निकालना। डेल्टा एच क्या होता है? डेल्टा एच इज इक्वल टू एच नॉट माइनस एच एफ, राइट? ठीक है, तो एच नॉट मेरे पास कितना है? देखो यहाँ पे 8 mm दिया है ना, एच नॉट इज 8 mm, राइट? ठीक है, एच एफ कितना आ जाएगा? एच एफ विल बी हाउ मच? तो देखो अंडरगोस 10% रिडक्शन इन थिकनेस, 10% क्या है? 8 mm में 10% घटा दो तो कितना बच गया जी? 0.9 7.2। इंटू 8, ठीक है, 90% बच गया ना? 8 9 8 72, 7.2। 2 बच गया, 7.2 बच गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0.8 mm क्या हो जाएगा? डेल्टा समझ एच आ गए, गया ना? पुट द वैल्यू अल्फा इज इक्वल टू हाउ मच? रूट अंडर 10 इनवर्स, ठीक है, रूट अंडर डेल्टा एच 0.8 डिवाइडिंग बाय वैल्यू कितना है जी? आपका आर का वैल्यू कितना है? 205। प्लीज टेल मी द वैल्यू यार। अल्फा कितना है अभी? अल्फा का वैल्यू कितना आया था? 3.574 आया सर। 3.6 करीब करीब, ठीक है। तो सिमिलरली हमको क्या करना है? यदि रेडियन में निकालना है एंगल तो क्या करेंगे? एंगल इन रेडियन, क्या करेंगे? 5/180 इंटू 3.6, आंसर अच्छा, वही आ रहा है 0.062। रेडियन। This will be the answer, right? अंकित कुमार टाइम से आओ, नहीं तो नेक्स्ट बार एंट्री नहीं देंगे। अंकित सर थोड़ा लेट हो गया सर, बाहर में थे सर इसीलिए। क्या कारण था? क्लास कितना बजे से होता है? कोई फायदा है? 11:10 से था सर, थोड़ा लेट बाहर आना में थे सर, काम था कुछ इसीलिए। ओके, ठीक है। लुक एट द क्वेश्चंस हियर, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चंस देखिए ध्यान से। If the maximum reductions in the rolling of a slab is from 25 mm to 20 mm, calculate the value of coefficient of friction, right? Coefficient का value आपको निकालना है। Take the roll diameter as 500 mm. Also find the length of the projections of arc of contact, right? ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या क्या निकालना है जी? बताओ। यहाँ से आपको निकालना है, याद आया क्या? म्यू का वैल्यू निकालना है। म्यू इज इक्वल टू वाट एंड एल लेंथ प्रोजेक्शंस, ठीक है, एलपी इज इक्वल टू वाट, ठीक है। तो याद कीजिए कि आपका क्या दिया हुआ है यहाँ पे? दिया हुआ क्या है ये बता दो पहले से, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ टी नॉट इज इक्वल टू 25 mm, एम टी एफ इज इक्वल टू 20 mm, राइट? कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। रोलिंग डायमीटर दिया हुआ आपका डायमीटर या आपका रेडियस यदि बात करते हैं तो d/2 हो जाएगा, या 500/2 इक्वल टू 250 हो जाएगा, राइट? तो याद कीजिए आपको हमने बताया था म्यू स्क्वायर आर इज इक्वल टू क्या होता है? म्यू स्क्वायर आर इज इक्वल टू डेल्टा एच होता है ना? तो यहाँ पे आप डेल्टा एच कितना हो जाएगा? म्यू स्क्वायर का वैल्यू हमें निकालना है। आर कितना हो जाएगा? 250 mm इज इक्वल टू डेल्टा एच। डेल्टा एच कितना आ गया? 25 माइनस 20 कितना हो जाएगा जी? 5 mm। म्यू इज इक्वल टू हाउ मच? म्यू इज इक्वल टू 5 डिवाइडिंग बाय 250। प्लीज टेल मी। 0.1412। 0.1412। 0.1412। ये आंसर है? अच्छा, यही आया म्यू। हाँ सर, यही है। ओके, वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट क्या निकालना है आपको? एल निकालना है। एल याद करो क्या हमने निकाला था? रूट अंडर आर इंटू डेल्टा एच। याद आया? फॉर्मूला दिखाते हैं आपको। अरे देखो, याद आया फॉर्मूला? देखो ये लेंथ निकालना है ना, ये लेंथ निकालना है ना, प्रोजेक्टेड लेंथ, दैट इज एलपी। एलपी इज इक्वल टू रूट अंडर आर इंटू डेल्टा एच, राइट? रूट अंडर आर इंटू डेल्टा एच। तो ये निकालना है ना,
So please tell me the value. Root under 35 R point- equal to- कितना आया? R कितना आ गया? 30.355 से। सर इसका नोट्स गूगल क्लासरूम में दे दीजिए ना सर सारा। कुणाल, हाँ नोट्स तो मिल जाएगा लेकिन तुम समझ नहीं रहे हो। तुमको समझ दिक्कत रहे हो रहा है, तुमको बताओ तुमको। नोट्स तो मिल जाएगा तुमको, बुक भी थोड़ा देखो, नोट्स तो हम भेज ही देंगे, ठीक है? ओके कुणाल, हम भेज देंगे। तो अब बताओ ये आंसर किसका किसका आया है जी? 35.355। आर का वैल्यू कितना था? 250 था। गुना डेल्टा एच का वैल्यू कितना था? 5 था। देखो कितना होता है। आंसर सबका आया कि नहीं आया? नफीजा, हाँ सर आ गया। Yes, sir. लक्ष्मण, बना रही हो? Yes, sir. ओके, आ गया सर आंसर। आ गया ना? ओके, वेरी गुड। यस। ओके, तो इस टाइप का ही क्वेश्चन गेट में पूछा जाता है, ठीक है? तो गेट में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लोग बना लोगे या नहीं बना लोगे? किसी को डाउट है कि हम सर नहीं बना पाएंगे, फिर से हमको पढ़ाइए।